औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड वाइड। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मौका दिया है कि हिंदुस्तान को फेटम में दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। अमेरिका का फिंसेन इदारा है, इसने एक रिपोर्ट शाये की है कि हिंदुस्तान के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, मैच फिक्सिंग में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स स्मगलिंग में इस्तेमाल होता है और दीगर जो मजहबी फसादात हिंदुस्तान में कराए जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो कराई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है, अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी कराई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है और दीगर इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ दहशतगर्दी कराई जाती है वहाँ इस्तेमाल होता है। इंडिया के बड़े बड़े बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जो है मुलवस हैं। इसमें सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $102 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है इसने और पंजाब नेशनल बैंक ने जो है $290 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसके बाद इनका बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने $93 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, $99 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके अलावा छोटे दीगर बैंक हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस हैं और जो ब्लैक मनी का पैसा जो है दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, मजहबी फसादात में इस्तेमाल होता है। आप इनका एक क्लिप सुने फिर आपको और आगे बताते हैं। So after the BVI leaks, you had the Swiss leaks, Panama Papers, Paradise Papers, and now we have this. Around 44 Indian banks have been named in these SARs. So the FINCEN files which launched today are part of a series of investigations we have done along with the International Consortium of Investigative Journalists since 2013. I have done a story in which number of big Indian companies, their transactions have been red flagged by FINCEN, and this was because of number of these companies were being investigated by Indian agencies. And what this project is all about is secret financial transactions and banking secrets. They involve what is called a SAR, which is a suspicious activity report of FINCEN, the American regulator, and the counterpart of that in India is the STR, or the Suspicious Transaction Report of the FIU. One of the stories we are working on throws light on a long-standing dispute between one IPL franchise and its sponsor over payments. This SAR shows that one apparently unrelated UK company tried to make this payment through an US bank for the Indian company, the Indian sponsor. But this attempt was declined by the US bank on a number of grounds, including forgery. Among several stories that are there, one is on a steel magnet in India that we were working on, and we see money getting transferred from Indian jurisdiction to other jurisdictions, and then money was coming back. I mean, the SARs have been raised basically because in a close period of time you see multiple transactions are happening, and in many cases these banks have flagged that they don't know what the transactions have been for, money going out and then coming back to his company through other companies. I mean, it seemed, as the SAR points, it seemed that there was no clarity on what the transactions were for. I mean, they could not figure out the end, what was the real purpose of the transaction. I have done another story on an art dealer, art smuggler, who has been selling Indian antiquities in all over world, mostly US and UK. The FINCEN files are about SARs filed by foreign banks, and since these are banking transactions, and here in India we are doing all the stories based on Indian corporates and businesses who have done these transactions, so it also involves a lot of Indian banks. There is a story that how gold is used as a medium of money laundering, and how this dirty money, black money, travels in the world from this part to that part. This will open another layer of, say, transparency. I mean, maybe Indian banks will be pushed for more due diligence because their network is also being utilized for
for transacting. These are obviously bank-to-bank transactions, but then where the money is getting utilized is the real question, and which is what FinCEN files is about. It raises question marks on why the transactions were done. आपने क्लिप सुना, इंडियन एक्सप्रेस का किसना कैटेगरी करेंगे। फिनसेन एक इदारा जो अमेरिका का, उसने जो एक खबर शाया की कि इंडिया के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान किसना दहशतगर्दी गुलभूषण यादव के थ्रू कराई गई। गुलभूषण यादव को हमारी पाकिस्तानी फौज ने अरेस्ट किया बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराया था और पाकिस्तान तहरीक तालिबान को ये पैसे दिया था। किस तरह पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे थे मस्जिद में, इमाम बारगाह में और मार्केटों में। ये गुलभूषण जो है यानी इनको पैसे दिया था, इनको इंडिया की एक राह दहशतगर्द तंजीम है उसने दी और ये गुलभूषण को इंटरनेशनल अदालत ने भी दहशतगर्द करार दिया। अब ये देखें कि हिंदुस्तान का एक भारतीय फौज का भगोड़ा मेजर गौरव आर्या किस तरह ये सजेशन दे रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पाकिस्तान में पैसा दिया जाए और जो है मजहबी जो है फसादात पाकिस्तान में कराए जाए। आप देखें किस तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान में भेजने की सजेशन दे रहा है। पर ये वीडियो आप सुने, इसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे एजेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तान उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा। आपने क्लिप सुना भारतीय फौज के भगोड़े गौरव आर्य का, किस तरह ये सजेशन दे रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो इंडिया के पैसे हैं वो उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराया जाए। ये एविडेंस है हमारे पास। ये गुलभूषण यादव जो है इनका बंदा जो दहशतगर्द हमने पकड़ा है, ये एविडेंस है। और अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है कि हिंदुस्तान के जो है 44 बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस हैं और दहशतगर्दी में ही पैसा इस्तेमाल होता है। एक ये एविडेंस आ गया। ये एविडेंस देखें भारतीय फौज का भगोड़ा किस तरह सजेशन दे रहा है ये पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी कराया जाए पैसे देकर। तो इमरान खान को चाहिए कि ये फेटअप में जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ फेटअप में FIR दाखिल कराए और उनको बताए किस तरह ये दहशतगर्दी में मुलवस हैं, इनके बैंक भी मुलवस हैं। ये एविडेंस है। अमेरिका की रिपोर्ट, फिंसेन की रिपोर्ट दिखाएं, गुलभूषण जो है की रिपोर्ट दिखाएं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने इसको दहशतगर्द करार दिया है, इसका एविडेंस लेके जाएं। ये गौरव आर्या जो है भारतीय फौज का भगोड़ा किस तरह ये सजेशन दे रहा है, वीडियो बनाकर पेश कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह दहशतगर्दी कराया जाए। और आप ये देखेंगे हिंदुस्तान में ये पैसे देकर किस तरह यानी कि ब्लैक मनी देकर पैसा, यानी ब्लैक मनी का पैसा देकर जो है हिंदुस्तान में भी यानी कि मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। आप ये वीडियो में मुनाज़र देखें।
आपने देखा हिंदुस्तान का असल चेहरा ये है, हिंदुस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत भी महफूज नहीं है, हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किस तरह दहशतगर्दी हिंदुस्तान करा रहा है, आपने सारे एविडेंस आपने देखे इस वीडियो के अंदर। इमरान खान चाहिए कि ये फेटअप में जाए और हिंदुस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए और हिंदुस्तान को बिले लिस्ट में डलवाया जाए। और जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।